morning, everyone. Thank you for joining in on a Sunday morning. Shows that you guys are interested in the career. Yeah. So of the students, let's start off with a short video, and then we'll take it forward. मुश्किलों से लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे जिंदगी में। जीत के आए हैं, जीत के जाएंगे, लाखों के कोई हमको दे पाएंगे। Too hot, too cool, all the kings that we rule. We're too hot, too cool, because tonight we rule. So, look, we've been teaching 15 years in Kolkata, in Howrah, right? Over the last few years, we have also, we are trying to expand to other locations in Bengal, right? And so we have opened up many centers in and around Kolkata, right? So Shrirampur mein we've started off, Chandanagar mein we've started off. The idea is to spread online, online को हटाकर जितना offline हम लोग reach out कर पाएं उतना better है. Because we have realized this and हम लोग सब देख चुके हैं during this COVID era कि online उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, right? Although kids might try, but 11th 12 वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए offline is the best way, right? एक classroom environment चाहिए, एक वो healthy competitive environment चाहिए. If I am studying in the online mode, तो अगर मैं 1 मिनट में एक क्वेश्चन किया या 10 मिनट में एक क्वेश्चन किया, right? It does not have any difference. मैं ही फर्स्ट किया, तो that competitive feeling is missing, right? और ये जो 11th 12th का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, it is so loaded, okay, so content heavy that you guys can shift also, through shift कर दीजिए so that if someone else comes. Yeah, so it is so content heavy कि 2 साल पूरे online focus करना is very very difficult, right? So it is very important to have this offline mode of teaching, which is mandatory, non-negotiable in class 11 and 12, right? So I'll introduce ourselves. My name is Varun Goenka. I've been teaching physics at Zenith Institute for 15 years, right? And we have produced reasonable results, and we intend to keep doing the same with your batch as well, right? Chemistry will be handled by Dr. Ritesh Pandey. He's been teaching 18 years, chemistry to Kolkata students, right? Maths will be taken care by Mr. Amit Butawar, right? He's been teaching for 12 plus years, and he has also done excellently well. His students have done excellently well, right? The entire admin will be taken care of by Mr. Alpeshwar Pandit, right? Bio, sir had come, but then there's some emergency, so he had to just take a leave. So Mr. Parikshit Dubey will be taking care of the biology segment, right? So before we go to there's a slide. You prepared a PPT. Before I go into the PPT, कुछ एक points मैं आप लोगों के साथ discuss करना चाहता हूँ, and then maybe we can take to the PPT, right? So a few points. So a few points which I have in mind, which I thought I'll share with you. ये ठीक है ना? English is fine. Yeah. Indian English, yes. So the first thing is, why do we choose to go to a premium college like an IIT or a government medical college? पहला चीज ये हमें समझना बहुत जरूरी है, right? Why this craze for these top-notch colleges, right? पहला बात तो ये कि
if you to enter into this college, you will need two main things, right? एक, ability to work hard, दूसरा critical thinking, right? Problem solving approach. और ये दो चीज अगर बच्चा सीख जाता है तो वो उसके जीवन भर के लिए एक एसेट बन जाता है, आगे वो जाके जो चाहे जो भी करे, राइट? ये दो चीज अगर ये 11 12 में जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करता है बच्चा, ये दो चीज वो सीख जाता है, एक मेहनत करना, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जीवन में हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते नहीं, बट व्हाट इज द आइडिया, हमें उसको सोच के उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, राइट? चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, राइट? सो वी मस्ट हैव दिस क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच टू get the best solution to that problem, right? And we must be ready to work hard. तो ये दो चीज बच्चा जो सीखता है apart from physics, chemistry, maths और bio is an asset for 2 years, right? और क्या होता है IIT या ये बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जाने से इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है, राइट? बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर कोई बच्चा जाता है तो इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है उसे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ही, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यू विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, राइट? इन दोस हॉस्पिटल्स, राइट? एंड सो उतना हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलता है. द बेस्ट प्रोफेसर्स टीच यू, राइट? द बेस्ट प्रोफेसर्स टीच यू. आपका जो एलुमनाई नेटवर्क है दैट विल बी सो स्ट्रांग, राइट? टुडे आई नो I can just close my eyes and I can point on a country, any city of that country, and highly likely that I will have someone from my peer group, मेरे कोई दोस्त कॉलेज का फ्रेंड जो वहां पर रहा होगा या रह रहा है and you know काम कर रहा है. तो I have my friend circle now across the globe, around the globe I have my connect, and that is what an IIT or a good government medical engineering college would give you, right? You will have such strong connect, and it will give you confidence. It will give you immense confidence कि मैं ये कर पाया, इतना टफ एग्जाम में क्रैक कर पाया, तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ. दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट इज, या यू कैन सर आगे आगे बैठ सकते हैं आप. यस यस यस, यू हैव प्लीज शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट कर दिया. Parents might not be very used to sitting in these chairs, but ठीक है, थोड़ा सा experience हो जाएगा what the child will be going through in these 2 years. So feel comfortable. And कोई भी point पे कहीं पे भी if you have any doubt, feel free to stop me and ask your doubts, right? So I was saying ये जो IITs या जो government medical and engineering colleges है, it gives you immense exposure, it gives you immense confidence, right? अब बात आता है second number point is how should I study in these 2 years, right? Should I study online? Should I study offline? As I already addressed, yes. Anything to discuss, ma'am? कुछ बोल सकते, ma'am? Okay. So if you have anything to discuss, please थोड़ा सा ध्यान दीजिए. I know it is difficult, especially for parents because they are not used to paying attention in this classroom type environment. Students are more used to it, but feel free to interact whenever you want. Feel free to ask me questions. Okay, but try to pay attention because these are very very important points that we are discussing, right? So the second idea, the second point is that the child will have to put in efforts. He or she will have to go to schools and also do the entrance exam preparation simultaneously, right? Many students opt for dummy school. We also have tie-ups with dummy schools, etc., right? But again, if the child is comfortable in that particular school in which they are going, they can continue with that same school, right? थोड़ा pressure रहेगा in a regular school also, but it is fun. Okay, if the child is comfortable there, एक dummy school में shift करने का advantage ये होता है कि you get a lot of time for self study. Disadvantage ये होता है that the child becomes reluctant, थोड़ा सा indisciplined. यहाँ बहुत time पढ़ लेंगे यार, वो चीज नहीं आनी चाहिए. तो if the child is very much self disciplined, तभी उसे dummy school में जाना चाहिए. But yes, उसका pros cons दोनों ही है, right? But if the child is comfortable in that particular school, he will continue in that, he or she will continue in that particular school itself, right? पहले बहुत advantage था CBSE में जाने का, etc., right? But of late ये advantage नहीं था, okay? Because initially CBSE used to set the IIT curriculum, right?
but now you have a separate testing agency, NTA सेट करती है पेपर, and so कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है. नीट में अभी भी एडवांटेज है सीबीएसई करिकुलम का, बट इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए कोई खास एडवांटेज नहीं. In fact, last few years का data which I would want to say is CBSE के papers class 12 के has been tough, lengthy, and the checking has been strict. तो जहाँ पर और सीबी में तो सिर्फ दिखेगा आपका 12 का बोर्ड का रिजल्ट, अब वो सीबीएसई है या आईएससी डज नॉट मैटर, राइट? तो you know why go to a CBSE school and get a lower score whereas you can have a good score in ISC, right? So if you ask me, wherever the child is, let the child be in that particular school, that particular curriculum, ताकि वो unnecessary time waste ना करे. You know, getting used to another curriculum, another school, उसको friends, उसका वो जो friend circle है, जो teachers का group है, पूरा वो change हो जाएगा. 6 महीने तो उसके उसी में waste हो जाएगा. Getting used to a different setup. तो मेन इज कि स्कूल में जितना कम वो एफर्ट में अपना 2 साल निकाल ले और मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम एफर्ट यहाँ की पढ़ाई में पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ने में इन्वेस्ट करे, राइट? और धीरे-धीरे ना ये डिफरेंसेस, ये एनईपी जो लागू हो रहा है, दे ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एनईपी 2020. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ट्राइंग टू इरेज द बाउंड्रीज. मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज कर रहे हैं, राइट? आल्सो व्हाट हैपेंस इज कि यू नो ऐसा पहले दिमाग में रहता था सबके कि बोर्ड का पेपर इजी होता है और एंट्रेंस का पेपर हार्ड होता है, बट दीस बाउंड्रीज आर बीइंग इरेज्ड. ऐसा एकदम भी अब नहीं रहा. इनफैक्ट सीबीएसई फिजिक्स का क्लास 12 का पेपर लास्ट 2 साल से हैज बीन टफर देन मेंस. ओके, हैज बीन लाइक एडवांस लेवल क्वेश्चंस. एंड सो ऐसा एकदम भी नहीं है. सो द चाइल्ड शुड नॉट थिंक कि अरे मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूं या मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा हूं या मैं जेईई के लिए पढ़ रहा हूं या नीट के लिए. मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, बायो पढ़ रहा हूँ, ये दिमाग में रहना चाहिए. ठीक है? You must have this in mind that I have to understand the subject. If you are able to understand the subject, the other things will follow. है ना? So please have this very clear in your mind, right? That you have to understand the subject, you have to fall in love with the subject. बाकी चीजें will follow, right? So these boundaries are being erased, and it's right? They're trying to get it to the same level, right? They're trying to get all these exams to the same level. NEET में जो skill चाहिए, that is being fast and being accurate. डॉक्टर को थोड़ी टाइम होगा कि आपको उस समय सोचिए क्या है. You'll have to administer, you'll have to take the decision immediately. And so NEET का पेपर उस तरह से बनाया गया है, right? बहुत सारे questions होते हैं और बहुत कम टाइम होता है, right? You have 180 questions to solve in 180 minutes. That is NEET का पेपर, right? And in speed and accuracy is what they need. और जेईई एडवांस जो आईआईटीज में जाने के लिए एग्जाम होते हैं उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और टाइम उतना रहता है 3 मिनट. तो वहां पर क्या है, they want conceptual depth, right? So अलग-अलग पेपर को अलग-अलग इंजीनियरिंग के लिए there's a different skill set that is needed, मेडिकल के लिए there's a different skill set that is needed, right? So according to your skill set, according to your liking, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भैया लेके साइंस मेरा बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए मैं साइंस ले रही हूँ. रॉन्ग, these are wrong decisions, right? क्या है राइट डिसीजंस टू टेक साइंस? मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में एंड आई मस्ट बी रेडी टू वर्क हार्ड. ये दो चीज अगर है तो यू विल फाइंड दिस जर्नी इजी. और 2 साल की बात है, 1-2 दिन 1-2 हफ्ते की बात नहीं है. कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, राइट? जो बच्चा, मैं तो यही देखा हूँ 15 साल में, जो बच्चा कंसिस्टेंट एफर्ट 2 साल पुट इन कर देता है वो इस एग्जाम को क्रैक कर देता है, राइट? I have seen very sharp students fail in this exam. I have seen very average students get through this exam. ठीक है? तो इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. क्या चीज से फर्क पड़ता है? कौन बच्चा कितना कंसिस्टेंट एफर्ट पुट इन करता है, राइट? So please remember these few things. It is a joint effort. Students का, obviously, parents का and teachers का, right? इन तीनों का joint effort से एक career बनता है, right? And it takes a lot of 2 साल की कड़ी मेहनत करके तब जाके एक रिजल्ट निकलता है, right? So ऐसा नहीं कि जस्ट एक बार एडमिशन आप करा दिया और फिर 2 साल के लिए भूल जाओ बच्चा क्या कर रहा है. नो, हम लोग वी विल हैव पीटीएम्स, रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा,
पेरेंट्स का अलग से ग्रुप रहेगा, वहाँ पे हम लोग सब डिटेल्स भेजेंगे. वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस. ओके, जितना बच्चा है, जितने हम लोग है पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आई वांट द पेरेंट्स आल्सो टू बी इन्वॉल्वड इन दिस एंटायर थिंग. और यहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखे हैं पर्पसली. कॉर्पोरेट कल्चर बनाना बहुत आसान है, कॉर्पोरेट रूप देना चीजों को बहुत आसान है. और उससे और कई 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 जगह पे ये किया जाता है सो दैट डिस्टेंस बना रहे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच. हम लोग एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं ताकि कोई भी बच्चा इमीडिएटली किसी भी टीचर के पास में जाके कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी उसे पूछना हो, he or she will be easily able to access the teachers, right? लेयर्स बना के, मल्टीपल लेयर्स बना के, एक कॉर्पोरेट कल्चर स्ट्रक्चर देके चीजों को, इट डज नॉट मेक सेंस सो फार एज आई अंडरस्टैंड. और never, it is very important that these 2 years students are engrossed with the teachers. हर समय टीचर से डिस्कशन करना, डाउट्स पूछना is a very very important, है ना. Also very another point which I would want to put across, बहुत ज्यादा ऑनलाइन ना पढ़ाई करें. क्यों बहुत ज्यादा ऑनलाइन ना पढ़ाई करें, इसका एक दो पॉइंट्स आई वुड वांट टू शेयर विद यू. ऑनलाइन पढ़ने से एक तो मैं जो बताया कि कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है 11 12 वाला जो सिलेबस है इसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो इफ यू आर स्टडीइंग ऑनलाइन, the competitive environment, the classroom environment, that goes missing. The other thing which goes missing is कि बच्चे क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नहीं हुआ तुरंत सॉल्यूशन देते हैं. YouTube और Google पे सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो अवेलेबल है और वो सोचते हैं हाँ ऐसे ऐसे करना था, ठीक है समझ गया, बट वो क्वेश्चन का पर्पस फेल हो गया. अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन इज नॉट द चैलेंज ऑफ द एग्जाम. अराइविंग एट द सॉल्यूशन, खुद से सॉल्यूशन निकालना इज द टास्क. जो चैलेंज है एग्जाम में इज टू अराइव एट द सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली, विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ टीचर, विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ YouTube और Google, राइट. तो ये जो ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आदत हो जाता है सॉल्यूशन देख के समझने का, बट वो समझने का तो कोई मार्क्स नहीं है, सॉल्यूशन समझने का 0 मार्क्स है, सॉल्यूशन पे खुद से अराइव करने का नंबर मिलता है, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है व्हिच गोज मिसिंग. अगर डाउट है आपको, सोचिए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ कोई बात नहीं, गिव इट सम टाइम, थिंक ऑन इट, प्रोसेस इट. और फिर भी नहीं हो रहा है तो टीचर को पूछिए. टीचर क्या करेगा, आपके अप्रोच में क्या गलती हुई वो बताएगा. सॉल्यूशन मैं भी दे सकता हूं सॉल्यूशन, बट अगेन दैट विल नॉट हेल्प. If I am able to point out the mistake in your approach, that will help you. कि अब आपको नेक्स्ट बार आप जब सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैं वहां पर ऐसा गलती किया था, अब मेरे को वापस से वो गलती दोहराना नहीं, रिपीट नहीं करना. So please understand this difference. Just going through a solution, understanding the solution is not the challenge of the exam. The challenge of the exam is to arrive at the solution. खुद से बिना कोई हेल्प के, ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट के, खुद से अराइव करना सॉल्यूशन. तो इसलिए प्रैक्टिस इज द की, सेल्फ स्टडी इज द की, राइट. सो बिना सेल्फ स्टडी के दिस विल बी इम्पॉसिबल. यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट. और बहुत ज्यादा ट्यूशंस वगैरह 10 जगह क्लासेस करके देयर इज नो पॉइंट. ओके, ट्यूशंस आर नीडेड कि सब्जेक्ट समझा दे, डाउट्स क्लियर कर दे, टेस्ट बेस्ड ले, बस बाकी काम घर पे करना, राइट. If you do not put in self study, 5 hours, let's say, of self study in a day, it's a rather difficult exam, right? But जो consistent effort देगा, it is not. और अभी ये जो post COVID world जो है, जहाँ पर everyone is addicted on the screen, right? जो बच्चा थोड़ा भी focus रह पाएगा उसके लिए exam crack करना बहुत easy, because almost everyone has lost their focus. राइट. तो जो बच्चा थोड़ा भी फोकस्ड रह पाएगा, थोड़ा भी डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएगा, दे विल गेट. राइट. सो दीस आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई हैड टू पुट अक्रॉस. I want Ritesh to add on to it a few points. Yeah. So, good morning everyone. I can consider myself to be the most senior. Absolutely. You are. And certainly the most heavyweight faculty. So you have been a wonderful audience so far. The objective of this orientation session is we don't start with the subject right away. एक आइस ब्रेकर हो जाता है, जो स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग आइडियाज लेकर के. The biggest problem is if you have too much of information.
तो my request would be that आप लोग इतने अच्छे से अब तक सारी बातों को सुन रहे थे, Varun sir would have told you most of this stuff. It's not only about listening, you should ask. तो आपके मन में जो भी doubts है, जो भी questions है, all the myths you have about JEE and NEET preparation, you should resolve it with us. We have done it throughout our life. If you ask me कि IIT में अच्छा रैंक लाने के लिए या नीट में स्टेट में सिटी में हमारे यहाँ से टॉपर होने के लिए क्या चाहिए, तो आई टेल यू सिर्फ 3 चीजें चाहिए। हार्डवर्क, हार्डवर्क, हार्डवर्क। अगर किसी को लगता है कि आप टैलेंटेड हो, आप गिफ्टेड हो, आप स्कूल के टॉपर हो, तो नो थ्रो दैट आइडिया आउट ऑफ द विंडो। 10th तक पढ़ाई बहुत लिमिटेड होती है, 11-12 में ही असली पढ़ाई चालू होती है। एंड आई विल नॉट मिस माय वर्ड्स, आई विल बी ऑनेस्ट। अभी हम लोग बहुत प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, अगले 2 साल हम लोग आपको बहुत टॉर्चर करेंगे। It's going to be a lot of academic torture, and trust me, it is not to our liking. This is not something which I enjoy. अगर मेरे को कोई बोले कि आपका बच्चा बहुत मेहनत करके और बहुत हार्ड वर्क करके कॉलेज में जाए या फिर एक शॉर्टकट से चला जाए, तो मेरे भी बेसिक इंस्टिंक्ट तो अपनी शॉर्टकट से चला जाए। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11-12 में साइंस लेने से, ये 2 साल ये एकेडमिक ड्रिल झेलने से और कुछ हो चाहे नहीं, जैसा सर ने बताया, you will get used to working hard in life. That is the biggest learning. Nobody dies because of hard work, I'll tell you. People die without work. बिना काम के लोग मर जाते हैं। And it's all in the mind. अभी मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि तुम यहाँ से लेकर के हावड़ा इसी मार्केट जाओ, फिर हावड़ा इसी मार्केट से यहाँ पर आओ, फिर हावड़ा इसी मार्केट जाओ, फिर हावड़ा इसी मार्केट से यहाँ पर आओ, मैं उसको बोलूं कि 4 राउंड लगाओ ना, it will be taken as a punishment and the student will feel offended. बट यही मैं अगर तुम्हारे बर्थडे में तुमको एक ट्रेडमिल लाके गिफ्ट कर दूं ना, तुम 2 घंटा उसके ऊपर दौड़ोगे, बोलोगे अरे सर ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया। So it's all in the mind. You know, if you take it like punishment, you'll never be, spirited to do it. But if you take it like an opportunity to learn the subject, then as I told you, nobody dies because of hard work. The most important thing is you should realize that you have such a privileged upbringing. हमारे पास बच्चे आते हैं जो गांव के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, माता पिता के पास पैसे नहीं होते पढ़ाने के। एंड मैं आपको बताता हूँ, I can give you so many examples. I've been doing it for about 18-20 years. मतलब they all make it to the best colleges. तो कभी-कभी क्या होता है ना, स्कैर्सिटी जहाँ पे रहती है, प्रॉब्लम्स जहाँ पर रहती है, वहाँ पे ड्राइव ज्यादा होता है। You come from families जहाँ पे your parents can afford your education. एयर कंडीशन क्लास में आकर के यहाँ पर तुमको सिर्फ एक काम करने बोला जाता है, वह पढ़ाई। तो ये 2 साल तुम अगर ऑनेस्टली पढ़ते हो, और कोई रेसिपी नहीं है। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, अलग अलग स्कूल के आते हैं, अलग अलग अपब्रिंगिंग के आते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के आते हैं। कोई शुरू में बहुत अच्छा करता है, बाद में खराब करने लग जाता है, कोई शुरू में बहुत खराब करता है, बाद में अच्छा करने लग जाता है। तो यार वरुण सर टोल्ड यू ना कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, और 2 साल पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। You have to give a lot of effort for the next 2 years. Trust me, at the end of the tunnel there is light. एक बार ये 2 साल खत्म हो गया ना, you come and talk to me after 2 years, पढ़ाई के अलावा ना सारी बात करते। ये 2 साल लेकिन कोई उपाय नहीं, तुम्हारे पास भी उपाय नहीं है, मेरे पास भी उपाय। And as I told you, more than listening to us, you would rather want to ask your questions. By the time we are done, we'll have an open house जहाँ पर आप लोग अपना ना प्लीज जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग से पूछ लीजिए। स्कूल के लिए अलग टीचर, बोर्ड के लिए अलग टीचर, जेई के लिए अलग टीचर, ये सब मिथ्स है। सब अपना अपना दुकान खोल करके रखा है, और सबका बोझा लास्ट में बेचारे स्टूडेंट को उठाना पड़ता है। तो मेक श्योर दैट ये जो आपको और मेरा एफर्ट है, ये जो सिनर्जी है, दिस गोज कंप्लीटली इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। And for that, both you and I need to be on the same page, and you need to be very well informed. As I told you, we want to ask you questions, your doubts. This is the first time you're getting this opportunity, but we'll make sure that throughout the 2 years, we are very reachable. We are simple people. हम लोग को ये काम करना अच्छा लगता है। हमारा इवेंचुअली रिवॉर्ड यही होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी, जैसा इन्होंने कहा,
people going to the best colleges and seeing them grow from sweet boys and girls to very matured and responsible people in different organizations and sectors is the only reward we have. तो आप यहाँ पे जाइएगा गोलाबाड़ी थाने के सामने में आपको एक डॉक्टर का सर्जन का एक बोर्ड दिखेगा, गोलाबाड़ी थाने के ठीक सामने डॉक्टर शैलेश जायसवाल, अभी वो सर्जन हुए। मेरे जो बच्चे नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाते हैं ना, मैं उनको डॉक्टर साहब बोलता हूँ। So that is the respect I have for people who do good in life, particularly medicine बहुत कंपटीशन है, बट अगर आई टोल्ड यू सबके लिए है, जो प्रेशर को झेलना जानता है, ईमानदारी से पढ़ता है, उसका होगा। ठीक है। So if Amit sir would want to add something. Well, most of the things have already been covered. जैसे वरुण सर और नितेश सर ने almost सब कुछ बोल ही दिया है. Just like to add a few points to it in the sense that कि the journey, ठीक है, जो रहेगा 11 and 12 2 साल का for the science students, whether it be medical or engineering, as Varun sir said, it is going to be painful. Okay, बिल्कुल भी easy नहीं होने वाला है. There will be times where you will be very high. You are must score over a test way. You're feeling good. The preparation is going good. But simultaneously, ऐसे भी moments आएंगे when you will feel completely finished. कि क्या चल रहा है दुनिया में समझ ही नहीं आ रहा है. Questions solve हो नहीं रहे हैं. Exams में marks आ नहीं रहे हैं. There will be point where you will be very frustrated. And this is all part of the journey. ये होगा ही. ठीक है. No one can be averse to it. सबके लिए ये moments आएंगे. Now the key point is whenever you start feeling low about any particular subject or any particular in the entire process, you must get out and get in touch with the teachers. हमारे पास आओ, अपनी problems share करो, ठीक है? There are different type of problems that a student faces during the journey of 2 years. ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई को लेकर problem होती है. There are other things as well that come across. ठीक है, पढ़ रहे हैं एग्जाम्स में लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है. There are a lot of things that happen. So the point is you must reach out to the teachers at that point. Yes sir, I'm trying to do my best. मैं कर भी रहा हूँ, पर मेरे से नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? What is lacking? कहाँ पे क्या चीज की कमी रह जा रही है, because of which we are not able to convert our preparation into performance. की मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है. या एनीथिंग लाइक दिस इज एन एग्जांपल. तो कुछ भी कभी भी अगर ऐसा फील हो तो यू मस्ट रीच आउट टू द टीचर, बी वेरी ओपन विद इट. ठीक है, बिकॉज प्रेशर रहेगा, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट. ऑल वी हैव टू इंश्योर, दिस इज फॉर द पेरेंट्स, कि बच्चों पे प्रेशर रहेगा. यू कैन नॉट प्रिवेंट दैट. आप उनको प्रेशर से बचा नहीं सकते. ठीक है, अभी बचा लेंगे तो दे विल सफर लेटर ऑन, बिकॉज लाइफ में देयर विल बी डिफरेंट जंक्शंस जहां पे उनको अलग-अलग तरह के प्रेशर्स झेलने रहेंगे. ठीक है, so what we need to do as teachers and parents is to ensure that they are able to mentally take it. ठीक है, जैसे when you are studying for 2 years, obviously there will be a lot of physical exhaustion, but there will be a lot of mental exhaustion as well. पढ़ाई करना especially 11th 12th का science is not easy. Engineering हो या medical हो, you have to exhaust your brains every day. ठीक है, so घर पे हो या यहाँ पे हो, we just need to ensure that उनको एक ऐसा environment मिल रहा हो जहाँ पे they are able to relax. जब पढ़ाई खत्म हो गई है तो उसके बाद they are able to relax and rejuvenate. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पागलों की तरह पढ़ना है, 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, मतलब 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं. नहीं, no, not at all. ठीक है, your lifestyle, the student's lifestyle of the student has to be very balanced. 7 घंटे सोना है, 1.5 घंटे 1-2 घंटे फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी रखना है. जाओ खेलो, दोस्तों के साथ खेलो, गेम्स खेलो, कुछ भी करो, जिम जाओ, फिजिकल एक्टिविटी. देयर हैज टू बी सम फिजिकल एक्टिविटी एज वेल सो दैट योर बॉडी इज एक्टिव. द एनर्जीज दैट यू हैव आर चैनल्ड इन द राइट डायरेक्शन. सो सोना भी है प्रॉपर्ली, डाइट भी मेंटेन करना है. ठीक है, बिकॉज़ इट इज नॉट अ जर्नी ऑफ 1 or 2 days या 1 or 2 months. ये 2 साल की जर्नी है. So the journey that you will be undertaking will be a 2 years ka journey. So if you start exhausting yourself from day 1 without rejuvenating, without taking proper rest, so very soon you will reach a point where you are burned out. Okay? You will face a burnout. कि इतना ज्यादा frustration हो गया पढ़ाई का कि अब पढ़ाई करने का ही मन नहीं कर रहा है.
Okay. So you have to maintain a balance in your life. पढ़ना है, of course, बिल्कुल पढ़ना है, but साथ साथ में there has to be a proper time for rest. ठीक है, 7 घंटे सोना है, स्कूल भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना है. Everything has to be done in a balanced way. तभी जाके you will be able to survive for 2 years. It's not a 100-meter race. It's a marathon. Marathon में अलग से मोबाइल कितने घंटे करना है? मोबाइल भी you तो should मोबाइल में मैक्सिमम टाइम निकलता है। मोबाइल का भी टाइम है, but that has to be limited. Okay, half an hour to 1 hour के आसपास if you have और कुछ भी In a प्रॉब्लम day? होगा तो पहले मोबाइल में सॉल्यूशन तो लोग सबसे पहले चल जाता है। वो तो जैसे वरुण सर ने बोले कि that is has to be avoided. Google पे solutions नहीं देखना है, ठीक है? Because once you know the problem is कि knowing the solution देख लिया, solution मिल गया, will not help in the exam क्योंकि एग्जाम में तो खुद से ही सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन. तो until and unless you have trained yourself in that way, the critical thinking आएगी तभी जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे. गूगल पे सॉल्यूशंस देख के your thinking will not improve. तो सर लेट नाइट पढ़ने से क्या ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है? That is up to the child. देखिए किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, इस पे कोई वो नहीं है. But I'll disagree. मेरे को लगता है ना कि हमारा ह्यूमन बॉडी ऐसा है, रात सोने के लिए बनी. रात में जो जागता है ना, उस प्राणी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ. तो नहीं, लक्ष्मी जी का भगवान है. तो ये एक माइंडसेट है. अगर आपको लगता है रात में शांति है, रात में मेरे को पढ़ने का एटमॉस्फेयर ठीक मिलता है, सुबह 4 बजे उठ सकते हो. सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ो, बट रात में जगना इज इनह्यूमन. एंड मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. I'll take 2 minutes. मेरे मामा जी का दिल्ली से ट्रांसफर हुआ था कलकत्ता. एंड लकीली वो 2 साल उस पीरियड में उनका ट्रांसफर हुआ था जब उनका बेटा 11th-12th में डीएवी में था. स्कूल मेरे को याद नहीं है. 11th-12th साइंस लेके पढ़ा था. तो और किसी रिलेटिव की शादी में मैं उससे मिला और मेरे मामा का लड़का, मेरा भाई हुआ, कजन भाई हुआ, वो मेरे को बोला भैया आप केमिस्ट्री में पढ़ाते क्या? बोला हाँ, रितेश पांडे नाम है मेरा. बोला अरे आप ही रितेश सर क्या? मेरी क्लास के बच्चे तो आपसे पढ़ने आते हैं. तो ऐसे वो मेरी क्लास में आ गया. शॉर्टकट में थे मेरे मामा जी उस समय. तो 2 साल 11th-12th जब उसकी पढ़ाई हुई तो मुझसे पढ़ा. 2 साल बाद फिर वापस उनका ट्रांसफर हो गया विशाखापट्टनम. एंड मेरे मामा जी मित्सुबिशी कंपनी में ईस्टर्न जोन के हेड थे. उस पीरियड में मेरे घर में 2 एसी लग गया, 2 टीवी लग गया मेरे घर में, सब मामा जी के थ्रू लग गया. और पैसा बाद में हम लोग दिए, जो भी दिए. तो एक बार मैं डिनर पे गया उनके घर में, मामा जी के घर में खाना खाने गया और उनका बेटा हमसे पढ़ता था. मैंने देखा उनके घर में कहीं पर टीवी नहीं है. सिर्फ हमारे जो बूढ़े नाना जी हैं उनके एक छोटा सा टीवी है, वो खाली उसमें न्यूज देखते हैं. घर में कहीं पर टीवी नहीं. तो मैंने बोला मामा जी मैच देखना होगा, कभी कुछ देखना होगा तो क्या करेंगे? तो he told me, and trust me, he was the eastern zone head of Mitsubishi. पूरी दुनिया में वो टीवी लगवा सकते थे. He told me कि बेटा जिस दिन ये लड़का साइंस लिया 11th-12th में, हम लोग डिसाइड किए 2 साल ना हम टीवी देखेंगे ना ये टीवी. तो जो मोबाइल का प्रॉब्लम है ना, ये सबके घर का प्रॉब्लम है. तो ना थोड़ा पेरेंट को भी डिसिप्लिन होने का जरूरत है कि आप भी मोबाइल नहीं देखें. अगर आप मोबाइल देखना बंद कर देंगे ना, तभी आप बच्चे को भी मना कर पाएंगे. हम लोगों का तो काम रहता है ना देखना. मैं आपको एक बात बताता हूँ. अगर आप अपना एक काम बताएंगे ना, बच्चा आपका 2 काम बताएगा. बच्चा आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड है. और फिर जिस समय मोबाइल नहीं था ना, उस समय भी दुनिया के सारे काम होते थे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंद कर दीजिए. आज तो पॉसिबल है ही नहीं. मगर मोबाइल जैसे हम लोगों का तो काम सब मैक्सिमम मोबाइल पे होता है, तो बच्चे भी देखते ही हैं. तो अगर ये मैच्योरिटी बच्चे में है तो ठीक है. बट मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम. बेटे से मोबाइल छीनूंगा तो बोले दीदी देख रही है. दीदी से मोबाइल छीनूंगा तो बोले मम्मी देख रही है. और मम्मी से छीनूंगा तो मम्मी मेरी बीवी बोलती है आप भी तो मोबाइल पे लगे. अब मैं उसको बोलूं कि मैं बच्चे का डाउट सॉल्व कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो मेरे पास भी नहीं लगेगा. हाँ, बट हम ट्राई करेंगे जितना मिनिमम हो सके. आप खुद यूज कम करेंगे तो आप बच्चे को डिसिप्लिन कर पाएंगे. पॉइंट इसकी करना हरी चीज है, बट एक लिमिटेड टाइमलाइन होना चाहिए. आप रात में भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्टडी विदाउट अ स्क्रीन. ठीक है, स्टडी विद अ स्क्रीन
तो आप चाहे दिन में पढ़े, सवेरे पढ़े, दोपहर में, रात में पढ़े, पढ़ाई नहीं टायर्ड होगी। जब पोजीशन में आता है ना उस समय सो जाना चाहिए। राइट, उस समय ऑब्वियसली नहीं, होना मैं चाहिए, तो- और एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। I'm completely against studying at night. Absolutely. जिसको रात में पढ़ने का आदत है, अंधेरा का आदत है, वो सुबह 3 बजे उठ के पढ़े। हाँ, वही 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ के पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। रिकॉर्डिंग अच्छी होती है। So the point is कि you know when you are studying, study without a screen. क्यों सबसे ज्यादा बच्चे रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं? ये भी इसका भी कारण है कि स्क्रीन का एक्सेस है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं। रात में मम्मी पापा तो सो गए, मेरे पास में लैपटॉप है और नो फोन है और स्क्रीन है, तो आई बी मैं पढ़ाई कम कर रहा हूँ और नो टाइम पास ज्यादा कर रहा हूँ। और वो मुझे भी रियलाइज नहीं होता, मेरे को तो लग रहा है मैं तो रात में 3 बजे तक पढ़ाई किया, बट मैं 5 घंटा पढ़ा और इफेक्टिवली पढ़ाई हुई 1 घंटे। तो इट डज नॉट मेक सेंस। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को होनी हो, राइट? ये ना तो टीचर के कंट्रोल में है, ना पेरेंट के कंट्रोल में है। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट में होनी होगी कि मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, राइट? ये सब यू नो अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट है, इसके ऊपर मेरे को रोक लगा। Self discipline is very important. Absolutely, self discipline has to happen, क्योंकि you know this journey cannot be done by pushing। ये जो जेई और नीट की जर्नी है, ये माँ बाप या टीचर के पुश करने से नहीं होगा। The child, the student will have to realize that it is their life, their career. If they are sincere, they will make it through, and they will be the beneficiary. अच्छा करियर बनेगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? पेरेंट्स को तो नहीं होगा, बच्चे को ही होगा। और खराब होगा तो सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी बच्चों को भुगतना होगा। We as parents and teachers will be happy about it कि हाँ बच्चे का बहुत अच्छा करियर बन गया, या sad about it कि बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाया, कर सका। बट जो बेनिफिट होगा वो भी बच्चे को ही होगा, और जो भुगतान होगा वो भी बच्चे को ही होगा। तो ये मेजॉरिटी अगर बच्चे में नहीं है, then it is very difficult. The child will have to understand कि this is a career turning point in their life. यहाँ से एक अच्छा कॉलेज is a you know is a passport to a very good career and a very good life. उल्टा भी ट्रू है। यहाँ से अगर एक आप एवरेज कॉलेज जाते हैं, then you know things become difficult with each passing day, right? So self discipline is very important. यहाँ अपने कल्चर भी है, हमारे यहाँ कल्चर भी है। हर साल जो बहुत अच्छा करते हैं एग्जाम में या बच्चे अच्छा करते हैं, यू ऑर्गेनाइज ए ट्रिप। हम लोग एक ट्रिप लेकर के जाते हैं बच्चों को खड़गपुर के पास, खड़गपुर कैंपस के अंदर में ले जाते हैं बच्चों को। एक दिन का एक ट्रिप होता है, 1.5 घंटे का रास्ता है। जाके देख करके वहाँ पे 4 साल बच्चे क्या जीवन दिए। तो अगर तुमको वहाँ पर रहना है 2 साल बाद, तो अभी ये वाला मोबाइल की जगह वो बटन वाला मोबाइल ले लो, 2 साल सैक्रिफाइस करो। If you are aiming for bigger things, you will have to let go these small, you know, ये सब की भाई मोबाइल देखना है, हाँ ये डोपामिन से तो छोड़ना होगा। If you want major successes, you will have to compromise. और वहाँ जाके कॉलेज में जाकर के रात में जब कोई नहीं बोली अभी पढ़ाई किस लिए? अभी 2 साल पढ़ाई करना is very very important. Yes. So तो जाती है कॉलेज में तुम जाके देखो ना, अरे रात के केटीपी का कैंपस में रात में तो मजमा रहता है। Yes, yes. रात को तो कॉलेज जाता है, हाँ, रात में कॉलेज जाता मॉर्निंग होता है, है। क्लास में दिन में सोता है। पर अभी ना 11th 12th में ना वो अफोर्ड नहीं कर Not the right सकता। time. प्रॉब्लम ये है, ये 2 साल ना वापस आएगा नहीं लाइफ। अभी तुम नहीं अफोर्ड कर सकते। 10th तक जो किया सो किया, और 2 साल बाद फिर इसका लाइसेंस मिलता। ये 2 साल लेकिन पूरा सेक्रीफाइस। So Alpesh sir will take you through the PPT, and then beyond that, if you have doubts, feel free to ask. So, I think most of the points from the PPT, I think the mentors have already covered. So I think इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में आई थिंक जो भी बच्चे सबको पता ही है कि लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज 90 क्वेश्चन, बट फिर से इस साल से वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। इट इज नाउ 75 क्वेश्चन, मतलब 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ, ठीक है। उसमें से अराउंड 300 मार्क्स एग्जाम होते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि मतलब मुझे 300 में लाइक 280 290 मतलब 90% लाना है तब जाकर के आई एम एबल टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। If I am able to get like 190 or 200 as well, मेरे लिए एक NIT सिक्योर हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं 240 के अराउंड पे भी या उसके ऊपर जाता हूँ तो फिर मेरे लिए IITs वाला मिलने का जगह बन जाता है, ठीक है। तो it is not very difficult as well if you study smartly कि मतलब और intelligently पढ़ो, सर लोगों से डिस्कस करके पढ़ो, then it is very much achievable as well, right? And it's a relatively easier exam. JEE Mains is relatively easier. NCERT based chemistry में, so what he has been trying to convey is 200 out of 300 is a good score. 200 out of 300 is a good score. Advanced obviously is going to be more challenging. कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ पर sky is the limit. ये एकदम बिल्कुल क्रीम लेयर को लेकर के जिनको IIT में जाना है उनके मेंस क्वालिफायर है, NCERT बेस्ड है। ये जनरली हमारे सारे अच्छे बच्चों का हो ही है।
एंड उसके थ्रू से मेंस के थ्रू से आपके NITs होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन होते हैं एंड IIITs होते हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी गुड कॉलेजेस एज वेल, ठीक है। तो वहां से वो हो गया। और जेई एडवांस जैसे सर ने बताया कि हाँ दैट इज द क्रीम ऑफ द लेयर, ठीक है। उसमें भी इट इज नॉट कि लाइक 30 to 35% इफ यू आर एबल टू अचीव द मार्क्स यू आर एबल टू गेट इनटू IIT, बिकॉज इट इज नॉट लाइक नीट कि आपको 720 में से 650 का स्कोर लेके आना है। इट इज अबाउट लाइक आप अगर 400 में 150 तक भी स्कोर लेके आ पा रहे हो तो आप मतलब एक डिसेंट स्ट्रीम लेकर के IITs में आप घुस पाते हो। बिकॉज एज सर वाज सेइंग कि मतलब इंजीनियरिंग वाला जो पढ़ाई होता है इट इज कंसेप्चुअल बेस्ड, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मतलब आपको अगर समझ में आ गया है और दिमाग में आ गया देन यू वुड बी एबल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जाम। बट यस मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है उनका प्रैक्टिस होना चाहिए। एक नोटबुक में यू शुड हैव probably made for physics, chemistry, maths and biology. जेई एडवांस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए बुक्स में। एक कॉपी बनाना चाहिए ताकि वहां पे यू कैन जॉट डाउन कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि मैंने क्रैक किया है बेसिकली डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड देन ऑब्वियसली मेडिकल में जैसे सर ने बताया था इट इज स्पीड इज द की, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, ऑपरेशन चेंबर में जाते हो, यू हैव फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू टेक अ डिसीजन कि मतलब हाँ इस पेशेंट के साथ में मुझे क्या करना है। सपोज एक कोई एक्सीडेंट या का पेशेंट आ गया या फिर कोई इमरजेंसी का पेशेंट आ गया, तो देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू डिसाइड कि मतलब क्या करना है। दैट इज व्हाई मतलब वो मेडिकल उतना चैलेंजिंग है। मतलब वो पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली इजी रहता है, इट इज लाइक टू द पॉइंट क्वेश्चन रहता है, बट यू नीड टू बी अवेयर रिगार्डिंग the knowledge that is there, उस सब चीज के बारे में you need to be aware of it. So that's why it is like 720 में से मतलब 650 के करीब चाहिए था। और दोनों में ही it is not कि it is easy, like the percentage of selection it is given like 1.2% select होते हैं, around 50 lakh students जो एग्जाम देते हैं उसमें से, ठीक है। और मेडिकल में भी it is around 1.8%, तो it is like 1 or 2% का सक्सेस रेशियो that generally we talk about. But I'll make it a little easier for you. ये परसेंटेज इतना कम लगता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये 15 लाख में ना पढ़ने वाले लेकिन 1 लाख ही होते हैं। तो अगर उस माइंडसेट से सोचोगे, अगर तुम पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ परसेंटेज ही इससे बहुत ज्यादा होगा। Yes. हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, नेशन वाइड परसेंटेज बहुत लो लगता है। पढ़ने वाले बच्चे उतने नहीं होते हैं और जो ईमानदारी से पढ़ते हैं उनका हो जाता है। सोचो 30-35% मार्क्स में भी हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? You need to be एग्जाम स्मार्ट। सब्जेक्ट सीखना और एग्जाम लेना सीखना ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि कभी स्टूडेंट सब्जेक्ट बहुत अच्छा जानता है पर एग्जाम में गड़बड़ कर देता है, क्योंकि उसने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं लिए। अब हमारे यहाँ एक सिस्टम है जहाँ पे हर महीने टेस्ट होगा, और मॉक टेस्ट करने से यही होता है यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपको ये भी कभी कभी जानना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये तभी आता है जब आदमी वो क्वेश्चन करके आधा घंटा वेस्ट करके देखता है 2 नंबर के लिए मेरे से टाइम वेस्ट। तो ये सब चीजें ना क्लास में नहीं सिखाई जा सकती, ये टेस्ट में ही सीखता है। तो ये परसेंटेज अदरवाइज तो बहुत कम लगता है, हमारे यहाँ ये परसेंटेज काफी ज्यादा है। बिकॉज़ हम लोग जनरली लाइक 18 to 20% जो सिलेक्शंस होते हैं IITs में, दैट इज एवरी ईयर दैट वी डू। तो इसमें कुछ डरने का नहीं है, जो अच्छा से पढ़ता है हमारे क्लास में सभी का हो ही जाता है। यस ठीक है। अगेन बैलेंसिंग रिगार्डिंग उन्होंने सर ने बता ही दिया था कि स्कूल लाइफ और जो ट्यूशन है और घर पे जो आपको वो सेल्फ स्टडी करनी है, ये तीनों में बैलेंस करना पड़ेगा एज अ पेरेंट। और जनरली क्या है कि जो टॉप 5 टॉप 10 हमेशा स्कूल में रहते हैं, उन लोगों को ये रहता है कि मेरे जब 11 में जाते हैं तो टीचर क्या बोलेंगे कि मैंने अगर अच्छा स्कोर नहीं किया तो क्या बोलेंगे। बट क्या होता है कि स्कूल में दे गो एट अ वेरी फास्ट पेस, क्योंकि उनको बोर्ड्स में परसेंटेज से मतलब है। बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज आएगा तो स्कूल का नाम होगा। तो उन लोगों के लिए 12 वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्लास 12 वाला पार्ट ही मेनली बोर्ड्स में आता है, 11 वाला पार्ट बोर्ड्स में नहीं आता। तो बहुत सारे जो चैप्टर कनेक्टेड है वो फिर भी स्कूल में करा देते हैं, बट जो थोड़ा सा चैप्टर डिस्कनेक्टेड रहता है उनको वो लोग स्किप कर देते हैं या फिर जल्दी जल्दी में खत्म कर देते हैं, ठीक है। बट हियर वी हैव टू डू इट एक सीक्वेंस में करना पड़ता है, ताकि कि बच्चे को अच्छे से समझ पाए एंड जेई भी क्रैक कर पाए, क्योंकि जेई में 11 12 दोनों से ही क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो इसीलिए स्कूल के फर्स्ट मिड टर्म हो गया या फिर फर्स्ट टर्म हो गया, स्कूल में मे बी मार्क्स में भी थोड़ा सा कम बेसी रहेगा। यू मे बी इन द लाइक बॉटम 10 में रहोगे, मतलब पहले
9-10 में क्या था कि टॉप 10 में थे, बट अभी देख रहे हो कि बॉटम 10 में हो। बट when नवंबर तक, नेक्स्ट ईयर नवंबर तक हम लोग का जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, then you all will be well prepared for entrance exam as well and boards exam as well, ठीक है। तो उसी माइंडसेट से चलना है। तो एज अ स्टूडेंट और पेरेंट्स ये भी समझना है कि यू आर एमिंग फॉर अ बिगर गोल। क्योंकि क्लास 12 के बाद में देयर इज नो क्लास 13 की हाँ स्कूल में वो टीचर की शाबाशी लेकर के बहुत ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला नहीं। इफ यू आर जस्ट क्रॉसिंग द लाइक पास मार्क्स भी आप कर ले रहे हो, कवर कर ले रहे हो, दैट इज गुड एनफ। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे जो एग्जाम्स हो रहा है उसमें अच्छा स्कोर करना है। मतलब अगर स्कूल में खराब हो रहा है और यहाँ पे भी खराब हो रहा है, देन यू आर नॉट स्टडीइंग, राइट। बट यहाँ वाले अगर इस एग्जाम में आप अगर अच्छा कर रहे हो, then you would obviously be able to tell your parents कि yes नहीं मतलब एक जगह पे तो मैं फोकस कर रहा हूँ। तो सपोज स्कूल में 5 चैप्टर आ रहे थे बट यहाँ पे 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो बट 3 चैप्टर के हिसाब से I have been able to answer to this question, ठीक है। तो वो अगर रहेगा then you would be able to make understand your parents as well। और पेरेंट्स को भी समझना है कि हाँ ये 2 साल की जो जर्नी होती है इट इज नॉट इजी फॉर द किड। तो अगर स्कूल में थोड़ा बहुत कम मार्क्स है, अगर एब्सेंट भी करना है तो एब्सेंट करें, बट उसको यूटिलाइजेशन थोड़ा सा अच्छा से। मतलब डोंट जज योर चाइल्ड बाय योर स्कूल, बाय देयर स्कूल परफॉर्मेंस। ये हो सकता है कि 10th तक बहुत अच्छा 95 98 आ रहा था, अभी अचानक 11th में आकर के अगर उसका 60 70% आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब कर रहा है। हो सकता है स्कूल में थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, स्कूल में तो 2 दिन में पढ़ा रहा है, हम लोग हो सकता है 1 महीने तक पढ़ा रहे हैं बिकॉज़ उनको लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो डोंट जज द चाइल्ड बाय देयर स्कूल परफॉर्मेंस, एट द सेम टाइम इट डज नॉट गिव द स्टूडेंट द लाइसेंस टू परफॉर्म बैड इन दिस। मतलब एक स्मार्ट बच्चा के अंदर ये भी होना चाहिए कि वो दोनों को बैलेंस करना जाने। हम तुम्हारा स्किल सेव कर सकते हैं, अगर तुम मेरी क्लास में अच्छा करते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है अभी थोड़ा नंबर कम है स्कूल में, पर फाइनल में अच्छा करेगा। पर अगर जैसा सर बताए स्कूल में भी खराब हो रहा है, यहाँ भी खराब हो रहा है, then that will be a problem. So this is the game plan for the students। मतलब अभी तक क्या है कि 9-10 तक सब्जेक्ट बहुत सुपरफिशियल थे, बहुत ही इजी वे में था। तो इट इज लाइक कि कॉमर्स का बच्चा या फिर एक आर्ट्स का भी बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर पाए तो साइंस और मैथ्स में वो उसी लेवल पे रहते थे। बट 11-12 में जैसे सर ने बताया इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट। तो उसके लिए एक गेम प्लान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मतलब 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़े जा रहे, नहीं। इट इज अबाउट स्मार्टली स्टडिंग, लाइक इट इज अबाउट लाइक 5 hours ऑफ सेल्फ स्टडी। 4 to 5 hours सेल्फ स्टडी मतलब स्कूल और ट्यूशन का जो टाइम है वो छोड़ करके मेरे को जो सॉल्विंग करना है, जो मेरे को जो प्रैक्टिस करना है, उसमें 4 से 5 घंटे रोज का दूं। सपोज स्कूल और ट्यूशन वाले दिन मैं 2 घंटे दे पाया, तो जिस दिन मैं स्कूल ऑफ कर रहा हूँ या फिर जिस दिन छुट्टी है उस दिन मैं उसको 8 मतलब 3 घंटे का 2-3 स्लॉट्स में करके उसको भी कर दिया। एंड अनदर थिंग इज स्टडिंग फॉर एट अ स्ट्रेच फॉर 3 hours, ठीक है। अभी तक बच्चों को आदत नहीं रहती है कि मतलब 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़े, 1 घंटा पढ़े फिर उठ के कुछ इधर उधर करने, फिर उसके बाद में बैठते पढ़ने। बट द एंट्रेंस एग्जाम और आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे सारे एवरी एग्जाम्स विल बी 3 hours ड्यूरेशन। तो जब तक बच्चों को 3 घंटे एक जगह टिक करके बैठने की आदत नहीं रहेगी, देन इट विल नॉट रेप्लिकेट इन द एग्जाम। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो क्लासेस भी है इट इज लाइक 2.5 hours तक हम लोग उन लोगों को स्ट्रेच कर रहे ताकि 2.5 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहे और क्लास में अपना फोकस बनाए रखें, so that when they get into the exam hall scenario they are able to maintain that, they are able to replicate that and they are able to perform based on that, right? And I'll tell you one thing, I'll tell you it will not happen overnight. Yes, ऐसा नहीं है कि I give you a piece of mind और कल मॉर्निंग में तुम उठ के you're a different person altogether. It will happen over a period of time. The basic idea is किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, इसलिए मत पढ़ो कि पेरेंट्स देख रहे हैं, इसलिए मत पढ़ो कि टीचर तुमको फोर्स कर रहा है। ईमानदारी से पढ़ो। और ये एक साथ 3 घंटे का बैठने का आदत ना, इट विल टेक सम टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। बट एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, कोई नहीं देख रहा है तभी भी पढ़ रहे हो, बिना घड़ी देखे पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट एंजॉय कर रहे हो, तुमको 3 घंटे के बाद ना बहुत खुशी मिल रही है कि ये 3 घंटे में मैंने ये सब कुछ खत्म कर लिया, मेरे को ये आता है, अब मैं किसी को बता भी सकता हूँ, सीख सकता हूँ, क्लास में मैं हाथ उठा के सारा आंसर दे सकता हूँ। ये जो खुशी है ना, ये तुमको 3 घंटे का समय ना बाद में लगेगा कि 1 घंटा ही। You'll want to work harder if you're actually enjoying it. हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ग्राउंड में जाने के लिए, अदरवाइज में सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। तो जो चीज अच्छा लगता है ना उसके लिए आदमी टाइम नहीं देखते।
Here, this is something you'll understand with time. So it is about like 45 hours per week का plan. तो 15 hours per week का content यहाँ से रहेगा. मतलब 12 hours तो यहाँ पे class ही रहेंगे. On an average like 11 to 12 hours का every week में यहाँ पे class रहेगा. Physics, chemistry, maths और physics, chemistry, bio लेकर के. Plus there will be an extra online sessions as well जो कि रात में रहेंगे from 10 PM generally. ठीक है. तो वो online extra sessions रहेगा जिसमें problem solving हो गया या फिर कुछ बोर्ड्स के लिए कुछ कभी कुछ उनके या स्कूल एग्जाम के लिए कुछ पढ़ाना था तो दैट वी विल यूटिलाइज दैट ऑनलाइन सेशन. अदरवाइज जो क्लास वाला एनवायरनमेंट रहेगा वो जेई मेन और नीट के लिए ही सारा फोकस रहेगा. ठीक है. तो 15 आवर्स 45 आवर्स जो बच्चों को देनी है उसके लिए 15 आवर्स तो यहाँ से कंटेंट मिल गया और ये 15 आवर्स को हजम करने के लिए द स्टूडेंट नीड्स मिनिमम ऑफ 30 आवर्स. मतलब जितना भी जो 15 घंटे में हम लोगों ने पढ़ाया है उसको सॉल्व करने के लिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए a student will need 30 hours minimum, right? So जब तक if you, until unless you have like 30 hours devoted to your self study, you will not be able to cover up this content, right? And I'll tell you a couple of more things. हम भी यहाँ पर ऑनलाइन क्लास लेते हैं. It's not like we are completely against technology. We are not against online. But यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लास अगर मेरी करते हो तो फिर आप ऑफलाइन आके हमसे मिलते हो. तो ऑनलाइन इज अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे I can spend more time with you and if you have any question, any doubt, you can talk to me. Unlike बाकी YouTube और वहाँ पे तुम इससे भी पढ़ रहे हो, उससे भी पढ़ रहे हो, उससे पढ़ रहे हो, तुम किससे मिल नहीं पा रहे हो. तो हमारा ऑनलाइन जो सिस्टम होगा वो एक सपोर्ट सिस्टम होगा. जैसा सर ने कहा उसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा कराएंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा कराएंगे, थोड़ी क्लास में कराएंगे. ये सब कुछ के बाद ना मैं एक चीज और बोलूंगा लास्ट में. जिस दिन पढ़ने की इच्छा नहीं होना उस दिन मान, जिस दिन इच्छा नहीं है पढ़ने की पूरा छुट्टी ले, एक दिन पूरा बैठ लो, पर अगले दिन से मेकअप करने के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए. ठीक है सर. तो as sir said, no extra tuitions for ट्यूशन students. कोई बोर्ड्स के लिए ना Physics, chemistry, अलग maths के लिए. और प्रेशर बच्चों पे मत कर देता है. हम लोग जो पढ़ाते हैं स्कूल का भी हो जाएगा, बोर्ड्स का भी हो जाएगा, और उसको किए बिना हम लोग जेई तक जा भी नहीं सकते. बहुत बेसिक से एकदम ग्राउंड लेवल से हम लोग पढ़ाएंगे. एक्स्ट्रा ट्यूशन मत डालिए, बच्चों को घर पे पढ़ने का समय मिलना चाहिए. तो आई थिंक इसमें क्लासेस वगैरह का कवर हो चुका है. तो देन विल हैव द एवरी वीक देयर इज अ प्रैक्टिस सेशन जो कि ऑनलाइन है, प्लस जेई मेंस और जेई एडवांस टाइप के मॉक टेस्ट. सो एवरी मंथ वी विल बी हैविंग द मॉक टेस्ट, ताकि क्या है कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही वो मॉक टेस्ट देने की आदत है. बिकॉज लाइक क्या है कि एंड में जाकर के अगर सिर्फ हम लोग टेस्ट ले तो वो पता नहीं चलता कि मतलब मेरा प्रिपरेशन लेवल कैसा है. स्टार्टिंग से ही अगर मॉक टेस्ट ले ले तो मॉक टेस्ट शुड बिकम एज इजी एज ब्रीथिंग. ऐसा नहीं कि मतलब मॉक टेस्ट मुझे कोई टेस्ट लेने के बाद तो सोचना पड़ जाएगा अरे मुझे टेस्ट लेना है. मतलब इतना यहाँ पे मॉक टेस्ट हो जाएगा पूरे ये 2 साल में, सो दैट इट विल बिकम लाइक हाँ ठीक है मॉक टेस्ट तो देना क्या है. एक्चुअल एग्जाम के टाइम में भी उतना ज्यादा नर्वसनेस नहीं फील हो, उतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो. They will feel confident as well कि हाँ मुझे एग्जाम देना है तो it's okay, मतलब I will be able to perform well in the exam basically. और टेस्ट कभी मिस नहीं करना है. टेस्ट कभी मिस नहीं करना है, ये ह्यूमन नेचर है. हमेशा लगता है एक हफ्ता और टाइम मिल जाएगा तो और अच्छा करें. तो काफी टेस्ट देने के बाद आप सीखोगे कि टेस्ट देते कैसे. तो डोंट मिस अ टेस्ट, इट विल बिकम अ वेरी बैड हैबिट. सेकेंडली, लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन ऑल ऑफ अस आर टुगेदर हियर is only because we have to take a test on a given day. So attending classes and not taking the test is like going to a doctor and not having the medicines. So test भूल के भी नहीं छोड़ना चाहिए. अच्छा, just a general sense, how many of you feel scared of the test? You know, जैसे एग्जाम आने लगता है वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है. Feel free, सब लोग feel free. Anxiety होता है and all that. ठीक है. So for everyone जिसको ऐसे टेस्ट से डर लगता है kind of, right? So you need to change your thought process regarding a test. Okay? The test, instead of thinking of a test that is something they forced upon you, yeah, एक टेस्ट है इसमें परफॉर्म करना है and all that. Take every test as an opportunity. टेस्ट को सोचो कि every test is an opportunity to showcase your skill. ठीक है? परफॉर्म करने का एक opportunity मिल रहा है. Think of it in the positive way. If I perform well in the test, I will be able to showcase my skill. Every test that you take is an opportunity. Okay, it's not something to be scared of. It is something to be relished. Okay,
Because only when you get a platform, every test is like a platform where you get an opportunity to display your skill, your ability. तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो अपना स्किल शो ऑफ कर पाओगे ना, तभी तो दुनिया को पता चलेगा कि हाँ भाई यू हैव सम टैलेंट इन यू. ठीक है, so tests are not something to be scared of. Tests, every test you should be excited about it कि चलो यार एक और opportunity है to be able to display my talent, to be able to display my skill, to be able to show off the results of my hard work. ठीक है, a test is an opportunity to show off. भाई सीधा सही है. So you once you start thinking of it in this way ना, तो जो टेस्ट का fear है, what the problem is कि कभी पॉजिटिव में तो सोचना नहीं है, ये सोचा कि यार टेस्ट खराब हो गया तो क्या होगा. अरे ये सोचो, you should be thinking कि टेस्ट में अच्छा करेंगे तो क्या होगा. Why do you want to go the negative way? Okay, so take every test as an opportunity. यार इस टेस्ट में अच्छा करके दिखाना है because I want to do it. I want to show my hard work. I want to show यार नहीं, I am able to perform at that level. जब इस मेंटालिटी के साथ एग्जाम में जाओगे, ठीक है, तब you will be able to perform at your best. Because take it from me, अभी जैसे mock tests होंगे, we will be taking you so many, we'll going through so many mock tests. But even then, when you sit for the actual mains का exam या actual advanced का exam, those exams are very high stakes exam. कि उसमें बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है उन exams पे. Like which career or which college you would be going, what be the career that you would be following, सब कुछ would depend on your performance on that particular day. So because of such high stakes, there will always be some sort of anxiety, some sort of nervousness, no matter how well you're prepared. Okay, so you mentally really prepare though that you will not, your performance in the test will be 90% या 80% of your regular performance that you give. जैसे घर पे बैठ के जब एक टेस्ट दे रहे हो और एग्जाम सेंटर पे उस दिन जो टेस्ट दोगे, it is very rare to bring out 100% of your performance जैसे घर पे कर रहे थे. ठीक है, so there will be a drop in the performance and that is what we need to arrest कि नहीं भाई 100 से 95 ही जाने, 90 ही जाने, ऐसा नहीं कि 100 का सीधा 50 पे आ गया. You have your performance is half of what you would have done generally without the pressure of the stakes. ठीक है ना? So taking the exam is also a skill. Preparation एक part है, performance एक part है. Preparation को performance में convert करना in the exam is a skill. And you learn it over a period of time. You will learn it. It does not happen overnight. I told you, I did tell you. काफी टाइम के बाद में, काफी टेस्ट देने के बाद में ये समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना. वो टेस्ट देने से ही समझ में आता है. And we will not judge you by your marks. तो ना कम से कम यहाँ पर तो we don't judge you by your marks. इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर कम लाना सर, आप तो पहला दिन बोले थे. But as he said, and the preparation for the test is bigger than the test. ये human nature है. टेस्ट नहीं होगा ना, कोई नहीं पढ़ेगा. Preparation for the test is bigger. Learning from the test is bigger. Actually, sir, test होता है तो हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कितना सीखा है, जो सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं, हमारा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है. मैं आपको एक बात बताता हूँ. मान लीजिए कल 12 बजे टेस्ट है, बच्चा पढ़ रहा है, टेस्ट नहीं हो तो पढ़ेगा नहीं. कल 12 बजे टेस्ट है, उसके लिए आज से पढ़ रहा है, कल से पढ़ रहा है, कितने दिन से टेस्ट के लिए पढ़ रहा है. अब खुदा ना खास्ता मान लीजिए 11:30 बजे हावड़ा में यहाँ पर लाइट चली गई, टेस्ट हुआ ही नहीं. फिर भी ना एक चीज हो गई, बच्चा पढ़ लिया टेस्ट. तो ये रिजल्ट है ना, वो हमेशा स्टूडेंट के भला में होता है. हुआ ही नहीं टेस्ट, पर तुम टेस्ट के लिए पढ़ तो लिए. जिस दिन ये माइंड सेट रहेगा ना, और इट टेक्स टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि राइट अवे सब वैसे ही हो जाएंगे, बट धीरे धीरे ये थॉट आ जाना चाहिए. And obviously there will be PTM, जो पेरेंट्स को भी सारा चीज इंफॉर्मेशन देगा. Every 4 months we will be conducting 1-to-1 student visa along with the teachers. पेरेंट्स से मीटिंग करेंगे कि आप लोगों को भी पता रहेगा बच्चे का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या क्या टेस्ट स्कोर्स आ रहे हैं, क्या अच्छा चल रहा है, क्या चीज उसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव. ये भी सारी चीजें डिस्कस करते हैं सो दैट कि रेगुलर इंटरवल पे वी कैन मॉनिटर एंड वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट. अदरवाइज मतलब ये 2 साल बाद करे तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा. तो रेगुलर इंटरवल पे पेरेंट्स के साथ में वी मीट एंड वी डिस्कस एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट सो दैट कि स्टूडेंट्स धीरे-धीरे मतलब इम्प्रूव कर पाए. एंड ऑब्वियसली देयर विल बी एक पेरेंट्स का भी एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जहाँ पे जितने भी टेस्ट है सब टेस्ट के स्कोर्स आप लोग को जाते रहेंगे.
टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस क्या है, कौन से दिन टेस्ट है, वो सब आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन रहेगा। सो दैट क्या है कि स्टूडेंट्स डू नॉट टेक अ लीव कि हाँ मतलब नहीं टेस्ट तो हो ही नहीं रहा, मतलब मार्क्स तो कुछ आए नहीं है, तो देयर विल बी टेस्ट। इवन व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नाउ कि हर एक लेक्चर के अगेंस्ट में देयर इज अ टेस्ट व्हिच अ स्टूडेंट कैन टेक एट होम, मतलब ऑनलाइन पे 10 से 15 क्वेश्चंस की टेस्ट रहेगी, तो हर एक लेक्चर के अगेंस्ट में, तो वो घर जा करके सपोज उसने सॉल्व किया तो ही कैन टेक द टेस्ट बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास बीच में। तो क्या है कि वो ले लेने से पता चलेगा कि वो जो लेक्चर मैंने किया था उसमें से मैंने कितना क्वेश्चंस कर पाया, एंड देन उसमें अगर कुछ डाउट्स है देन दे कम टू द नेक्स्ट क्लास एंड गेट दैट डाउट्स क्लैरिफाइड। ठीक है, तो अगेन डाउट्स क्लैरिफिकेशन इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, मतलब चाहे जो भी मोड हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ सर से आकर के आमने सामने आकर के पूछ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सर के पास जाएंगे डर लग रहा है तो उनको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल जो भी डाउट्स के लिए है, जहाँ पे क्या है कि ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द अदर सेंटर्स एज वेल, मे बी फूलबागान से भी, सॉल्ट लेक से भी जो भी बच्चे हैं वो लोग भी उसमें डाउट भेज रहे हैं, तो दे आर एबल टू सी व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट्स, उससे उनका भी क्लैरिटी मिलता है एंड दे सेंड द डाउट, मतलब तो फिर क्या है कि दूसरे बच्चे भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दैट वे 24/7 लर्निंग इज गोइंग ऑन, सो दैट कभी भी मतलब, और ऐसा नहीं कि मतलब एक डाउट आया तुरंत भेज दिया, सॉल्व किया, डाउट आया तुरंत मोबाइल पास में है ये भेज दिया, नहीं। वो जैसे सर बताया 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ो, जो भी क्वेश्चंस है लेट देम मिंगल इन योर हेड फर्स्ट, मतलब एटलीस्ट उस दिन तो वो लेट देम मिंगल इन योर हेड कि हाँ मतलब उसको कैसे सोच सकते थे, कैसे सॉल्व कर सकते थे, रात भर उसको रहने दो। Then if you feel you are not able to crack it, then send it across, right? वो तुरंत भेज देने से वही वो गूगल वाला चीज हो गया ना, क्योंकि उसमें किसी ने स्टूडेंट ने सॉल्व करके भेज दिया या फिर सर ने सॉल्व करके भेज दिया, वो तो सॉल्यूशन मिल गया, बट until unless you have thought upon it, it will not come to your mind during the exam, because exam is जैसे आप बोल रहे हैं घर में ले जाने का, तो फिर कुछ में कॉपी करके कहीं भी तो फाइंड आउट करके आंसर निकाल ही लेंगे। मैं आपको बताऊं, कभी ना कभी तो बच्चे होंगे ना। अब आप अपने बच्चे को ना इतना भी वो नकारा मत समझिए, अभी ठीक है बच्चा है, कभी ना कभी तो मैच्योर होगा ना, हम लोग सिखाएंगे तो सारे देते हैं। नहीं, तो टेस्ट जो रहता है वो ऑनलाइन में भी रहता है और ऑफलाइन में भी रहता है। 1 महीने हम लोग ऑनलाइन में करवाते हैं क्योंकि जेईई मेंस का और जेईई एडवांस का एग्जाम जो है वो कंप्लीटली ऑनलाइन है, सो दैट दे नीड टू हैव अ प्रैक्टिस कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेते हैं, और ऑफलाइन में इसलिए कराते हैं क्योंकि कोविड में वी हैव सीन कि हाउ स्टूडेंट्स गिव द एग्जाम। ना चोरी नहीं करे, बेसिकली ऑफलाइन इसलिए कराते चोरी नहीं करे। और मैं एक बात बताऊं, कभी ना कभी किसी ना किसी समय हम सबने कोई ना कोई चोरी की है, ठीक है, तो भी वो सीख जाएगा। अभी तक कर रहा था, करने दीजिए, बच्चा है, वो धीरे धीरे जब खुद उसको मैच्योरिटी आ जाएगी, रियल एग्जाम में ना कोई हेल्प नहीं करने वाला। मेरी क्लास में एक बच्चा आगे बैठा है, एक बच्चा पीछे बैठा है, रियल आईआईटी के एग्जाम में मेरे बैच से बचपन की दोस्ती है, पर आईआईटी के एग्जाम में ना नहीं मदद करता, वहां पे रियल एग्जाम में ना कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो ये मैच्योरिटी जिस दिन आ जाएगी ना, अब एक का बहुत अच्छा रैंक आ गया, दूसरे का रैंक अच्छा आया, खराब नहीं है, 1500 रैंक आया, बहुत अच्छा रैंक है जेईई में, पर ये दूसरा फ्रेंड है वो मुंह फुला के बैठा हुआ है कि यार सामने वाले का 150 रैंक आ गया, तो वहां पे ना कोई दोस्ती यारी नहीं चलती। जिस दिन ये समझ में आएगा रियल एग्जाम में मेरे को खुद का हेल्प करना है, उस दिन से चोरी करना एंड इट विल हैपन ओवर टाइम, वो सीख जाए। ऑनलाइन थोड़ा चोरी करने दीजिए, ऑफलाइन में मालूम चल जाए। हमको तो क्लास में मालूम चल जाता है, किसी बच्चे का अगर ऑनलाइन में नंबर ज्यादा था तो हम लोग को पता रहता है, तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग उसको बुला के बोलते हैं तुम चीटिंग किए, हमको उस पीरियड के लिए उसको खुश रहने देखते हैं, ठीक है चलो जो किया उसको खुशी तो मिली है उसको, तो वो ग्लोरी भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, खुद ही उससे बाहर आ जाएगा। क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ ऑफलाइन जब एग्जाम होगा हाँ तो रियलिटी चेक हो जाएगा। आई थिंक दिस इज शॉर्ट वीडियो, एक हाँ एचसी वर्मा सर का वीडियो है। कोई ना कोई तो मैच कर ही जाएगा, पैटर्न्स रखवा दिए, पैटर्न्स रखवा दिए, दीज आर लीगल मेथड्स। तो ऐसा करके उन्होंने अगर बिना सब्जेक्ट को समझाए हुए, बिना सब्जेक्ट के लेक्चर में गए थे, बिना उसकी क्षमता को बढ़ाए हुए, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाए हुए अगर इम्तिहान में पास करा दिया, ऐसे ही बच्चे बड़े इंस्टीट्यूशन में जाकर के ज्यादा कष्ट पाते हैं। कितने हैं आपके काउंसलिंग सर्विस कितनी बड़ी है यहाँ पे आईआईटी कानपुर में? फर्स्ट एग्जाम ऑफ इंडिया कानपुर के अंदर उसका एडमिशन हुआ है, छोटी
में नहीं हुआ है, अब उसको काउंसलिंग की क्यों जरूरत है? इतने सारे काउंसलर्स रखने की, फैकल्टी का अलग, स्टूडेंट्स का अलग, हॉस्टल का अलग, ये वो इतना बड़ा काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्यों? कहाँ गड़बड़ हो रही है? So, yeah, so the point here is, H.C. Verma sir, H.C. Verma is like, the king of physics in India. Right? So his books have been there. पहला एडिशन था और फिर वो कभी रेक्टिफाई या कुछ कुछ वापस से पब्लिश और नया एडिशन नेवर, जस्ट खाली फ्रंट कवर चेंज होके इट इज बीइंग रिलीज्ड एवरी ईयर. इवन पब्लिशर्स सेड कि सर आप थोड़ा तो चेंजेस कर दीजिए ताकि हम लोग का बुक एटलीस्ट कुछ तो दिखे. आई थिंक वैसे ही है. इट वाज इट जस्ट once made and never edited later on. तो 92 से उनकी बुक चल रही है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा. तो what he is trying to tell कि सब्जेक्ट समझ के एग्जाम में जाइए, सबसे सब्जेक्ट समझ के, रट के मत जाओ. राइट? रटने से हो सकता है वो एग्जाम तो क्वालिफाई कर लो कि भाई इतना 1000 क्वेश्चन है, हम ये रट्टा मार लिए तो क्या पता एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया, पर बाद में जाके मुश्किल होगा. All our students, who have studied here, all of them when they go to these colleges, all of them are almost 9 pointers. क्यों? क्योंकि वो लोग सब्जेक्ट समझ के जाते हैं. राइट? सब्जेक्ट समझ के जाने से but you will find it very easy because most students will reach there, वो लोग रट्टा मार के बस somehow or the other पहुंच गए and they have already burnt out. क्योंकि इतना ज्यादा exhaustion और इतना ज्यादा रट्टा मार मार के इतना ज्यादा पैसे निकले कि वो burn out हो चुके हैं. अब वो बोलते हैं कि भाई अब तो chill मारना है, which is not the correct thing. ऐसा नहीं है कि अच्छा कॉलेज पहुंच गए तो फिर पढ़ाई करना ही नहीं. वहाँ पे भी आपको पढ़ना होगा और इनफैक्ट वहाँ पे तो आपको बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री सब एक साथ में रहेंगे. द क्रीम ऑफ द कंट्री विल बी टुगेदर. तो उनके साथ कंप्लीट करना है. राइट? तो the idea is if you learn the subject, if you understand the subject and you reach and you qualify the exam, that is much more important, that is much more beneficial rather than just rote learning. तो रट्टा मार के जाने से एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी हो जाता है, इतना सारा चीज में रट्टा मार रहा हूँ, क्रैम कर रहा हूँ. कॉन्सेप्ट समझ के जाने से you don't have to mug up, and so in the exam you are able to perform and beyond the exam also you are able to perform. Right? तो वो problem solving सीखना is very very important. Right? Instead of just rote learning कि ये 5000 क्वेश्चन है रट्टा मार ली. No. So that's what sir was trying to tell. So next is basically, so it is not just about कि हाँ बच्चे ने यहाँ पे enroll कर लिया, classes आ गया तो उसी से clear हो जाएगा. It is not all about that. So the 100% effort or the 100% study that we say is breaking up into this 4 step. ये 4 step में है. पहला एक तो कि मतलब obviously क्लास तो अटेंड करना है. सिर्फ क्लास अटेंड करने से सिर्फ 25% काम होता है. It is not 100%. Like next 25% is going through the solved examples. जो भी पढ़ाया गया है उसका solved examples को go through करना, अच्छे से go through करना, so that you know how to apply those concepts. कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में you need to spend 25%. Then next 25% is when you actually solve the problems. खुद से जब सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स तब होता है. And finally वो 100% तब कंप्लीट होता है when you ask those doubts. जो भी सारे मेरे क्वेश्चंस अटक गए वो जब पूछते हो, and when you ask with the teachers, not सिर्फ उसका सॉल्यूशन देखना, when you ask with the teachers, then actually the complete cycle मतलब पूरा पढ़ाई का ये कंप्लीट होता है. राइट? तो बेसिकली ये 4 स्टेप हमें करते हैं फॉर एवरी चैप्टर, फॉर एवरी सब्जेक्ट. राइट? 2 साल बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा कंटेंट. आजकल क्या ये पोस्ट कोविड इतना ज्यादा कंटेंट इजीली अवेलेबल हो गया सब जगह. पीपल जस्ट कीप डाउनलोडिंग कंटेंट. राइट? और वहाँ पे यूट्यूब में मोटिवेशनल लेक्चर्स है, इस तरह पढ़ो वैसा पढ़ो. वो लोग प्लान रीप्लान बस ये इसी करते हुए 2 साल निकाल. एक रफ प्लान चाहिए और बस मेहनत करना. राइट? मेहनत करने की प्लानिंग को मेहनत की मतलब पढ़ाई की बात करके वो लोग सोचते पढ़ाई कर ली, नहीं होती वो. राइट? पढ़ाई तो पढ़ाई करने से होती है. राइट? We just discuss about studies, that's not studies. Right? So बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग और just कंटेंट डाउनलोड कर लिए, ये लेक्चर डाउनलोड कर लिए, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके रख लिया लैपटॉप. यहाँ हो गई अब करेंगे तो पढ़ाई नहीं हुई. राइट? We call this as the collector's fallacy. राइट? उनको लगता है कि मैं कुछ डाउनलोड कर लिया तो हो गया, मेरे दिमाग में भी आ गया. नहीं है ना, सिर्फ डाउनलोड कर लिया तो लैपटॉप में पूरा कैसे पढ़ा है. प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा ऑनलाइन रेफर मत करो. फॉलो दीज 4 स्टेप्स. क्लास अटेंड करना है रिलीजियसली, नोट्स लिखो, इज्जत से नोट्स लिखो.
आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे तभी समझ में आएंगे। और वो नोट्स इज द टूल टू रिवाइज। एग्जाम के पहले वो नोट से ही रिवाइज करना है, इसलिए नोट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर घर पे जाके सॉल्व एग्जांपल्स करना है, एक्सरसाइज करना है और फिर आगे का 4 स्टेप प्रोसेस है, यही करना है, राइट। एंड दिस इज टाइम टेस्टेड। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही कुछ पीपीटी बनाते, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन दीस 15 इयर्स 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट इज व्हाट वी आर शेयरिंग। And एक इसमें भी the important part is please do always remember that the onus of asking doubts would be on you. Absolutely. Okay? ये बच्चों का काम है कि वो टीचर से आके डाउट्स पूछे and then it becomes our responsibility to answer you back कि जो भी डाउट्स हो, जो भी क्लियर करना हो, we will do, that is our thing. But now considering that you people are in now class 11 and you'll be going to next year, you'll be going to class 12, so you are grown up enough, you are mature enough to be able to start taking responsibility about your own stuff. Okay? And secondly, no matter how silly a doubt feels, मुझे लग रहा है ये क्या है, ये कुछ भी है, if you have a doubt, तुमको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, go to the teacher and ask. कितना भी silly हो, कुछ भी हो, doesn't matter. ठीक है? The entire point is कि if you go to the teacher and ask that doubt, तो जो चीज नहीं समझ में आ रही थी वो समझ में आ गई, तो is that a benefit? फायदा हुआ ना? तो अगर किसी का कोई ऐसी चीज करने से जिसको तुमको फायदा हो रहा है, क्यों नहीं करनी है? तुम्हारे फायदे का काम है तो करना ही है। Okay, that's why you guys are here, right? You have joined ताकि आपकी जो भी डाउट्स आए आप वो पूछ पाओ, right? डाउट्स अगर पूछने में हिच करना और ये सब these are silly things, right? कि दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे या टीचर मजाक उड़ाएगा, जिसको मजाक उड़ाने तो doesn't matter। तुम्हारा डाउट है वो सॉल्व हो गया, तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो गया, राइट। और वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं सॉल्व होगा तो तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं उस टॉपिक में, हमेशा रहेगा कि यार तो नहीं आता। तो द पर्पस इज टू आस्क डाउट, गेट इट क्लैरिटी, राइट। हो सकता है वो बहुत इजी डाउट हो, तुम्हारे लिए तो वो डाउट था और वो वही तुम्हारा रोड ब्लॉक था, वो एक बार रोड ब्लॉक हट जाएगा, यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। अगला क्लास आने के पहले एक बार ये जो वीडियो लेक्चर है वापस से जो लास्ट क्लास का वीडियो था वो गो थ्रू करके आप आ जाओ। दैट इज व्हाट दिस इज प्राइमरीली मेड फॉर। ओके, ट्राई टू यूज इट एंड नॉट मिसयूज इट। This is something that the parents will have to take care of. Okay, we provide lectures for every class, but it is not like कि आप फिर वैसे हो जाए कि बच्चा बोले कि अरे यार आपको थोड़ा सा सर हेडेक हो रहा है, नहीं जाएंगे क्लासेस में, से पेट में दर्द लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं जाएंगे क्लास। That is not the agenda of these things. Okay, it's a facility that we are providing to the students so that they don't miss out on academics because of some unforeseeable, unavoidable reasons. Okay, not to make them insincere कि यार चलो ठीक है रिकॉर्डिंग तो आई जाएगा, आज नहीं मन कर रहा है क्लास नहीं जाएंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। And if you have to be very very strict on this part, because एक बार वो insincerity आने लग जाएगा ना, not about basic classes, then that insincerity will start creeping into everything else as well. तो घर पे पढ़ाई में भी वैसी होने लग जाएगा, टेस्ट में भी वैसी होने लग जाएगा। So this is something that the parents really have to be very strict about. और बहुत ज्यादा अगर हमें लगे कि बच्चा क्लास मिस कर रहा है और नहीं आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग तो भी शट दिस रिकॉर्डिंग, राइट, बिकॉज़ वी वांट यू गाइस टू कम, राइट। ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो फिर वो अलग बात है, फिर तो यहां एनरोल करके मतलब नहीं। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, इट इज जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम, इट इज जस्ट टू सपोर्ट द ऑफलाइन स्ट्रक्चर, राइट। दिस कैन नॉट बी द मेन स्ट्रीम मोड ऑफ लर्निंग फॉर क्लास 11 12 So please be very clear in this. अगर मुझे लगेगा कि people are missing classes and कि भाई ऑनलाइन हम लोग देख ले रहे हैं सर, मैं उस पर्टिकुलर अकाउंट का एक्सेस ऑफ कर दूंगा। जैसे कजिन की बर्थडे पार्टी में जाना है, क्लास तो रिकॉर्डिंग कराई जाएगा, ठीक है, बर्थडे पहले एंजॉय कर लेते हैं। बर्थडे नो पार्टीज कुछ भी नहीं सर, दो साल। Absolutely. So everything will be available there. I think the parents के covered है। Just I think last point इसमें एक चीज है कि you need to monitor कि मतलब हाँ जैसे बताया कि मोबाइल ज्यादा नहीं देखना है। बच्चे आजकल क्या है कि आफ्टर कोविड वो मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखना इज नॉट पढ़ना। वीडियो देखना कैन बी ओनली 25%, बाकी अगर वो 25% मतलब 1 घंटे का अगर किसी ने वीडियो देखा है तो
उसको सॉल्व करके उसको समझने के लिए मिनिमम 3 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो 1 घंटे का वीडियो देखना इज यूजफुल और इट मेक्स सेंस, ठीक है। तो सिर्फ दिन भर वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट्स, आजकल तो बच्चों को की शॉर्ट्स आ गए हैं, शॉर्ट्स देख लो, मतलब एक दिन में कवर हो जाएंगे, मतलब एक चैप्टर पूरा 1 घंटे में और वो कवर हो In जाएगा। short, basically, don't make studies a web series. एक binge watch कर लिया पूरा एकदम एक दिन में एक चैप्टर खत्म। कोई भी आप अगर कुछ एक यहीं के अगर आप एक वीडियो लेक्चर देखे हो तो उसको अगर 3 घंटे का वीडियो देखो तो 9 घंटा घर पे फिर उसको प्रैक्टिस करोगे, तभी वो 3 घंटे देखने का मतलब है। 3:1, ओके, 3:1, not less than that, not less than that। क्योंकि दैट वी नो कि मतलब हाँ एक वेब सीरीज, जैसे ने बताया वेब सीरीज देखते हैं, 1 महीने पहले 2 महीने पहले देखा हुआ वेब सीरीज अब हम लोग को याद नहीं रहता, बिकॉज इतने सारे वेब सीरीज आ चुके हैं एंड दिस इज हेवी कंटेंट, दिस इज नॉट इजी कंटेंट टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो इसको अगर सिर्फ देखा हुआ रहेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट इन द एग्जाम। लाइक एग्जाम में रेप्लिकेट करने के लिए वो प्रैक्टिस, मतलब मसल मेमोरी, हैंड मेमोरी में, पेन मेमोरी में आना पड़ेगा, तब जाकर के यू विल बी रेप्लिकेट इन द एग्जाम, राइट। So I think that is all. So we have like the teachers open the door, but you'll have to come and you'll have to interact with them. You'll have to ask doubts with them. Any doubts? Any We have any questions? queries? We've been a very patient audience. So thanks for listening, and if you have any doubts, please ask, or else we'll mind it up. और ऐसा नहीं कि स्कूल के लिए पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, anything doubts to be on. So I think probably we were able to make all the points clear. So yes. You have to go past this. ये होता है ना, पूछे नहीं हाँ, yes, yes. हम लोग 1 घंटे से यही बोल रहे हैं, भाई पूछो। In doubt पूछ लो। एक्चुअली सर आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, सीबीएसई आईसीएसई का ये सब का मेरा डाउट था, तो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर। नहीं, और ऐसा नहीं कि अभी पूछना है। If you have doubts during this 2 years also, feel free to come down. You know, we are very approachable. We all will be there on the WhatsApp group, right? So you will all have our numbers, right? So whatever doubt you have, feel free to get in touch with us. और ये याद रखिए, it is not the institute who will teach, it is the teachers who will teach, right? कई पेरेंट्स को ये भी कंफ्यूजन है कि आपका यहाँ पे क्या एडवांटेज है, और you know why is this place better than some XYZ place, right? The two USPs that we have, we have a history of results, और ऐसा नहीं कि just a history of results, we also have been producing results in the last you know every year. हो सकता है मेरा बहुत नाम है कि बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ एक्सेट्रा, बट मैं अगर इस बैच के साथ उतना मेहनत नहीं करूँ तो फिर मेरा नाम इस बैच में कोई काम नहीं है, राइट? आई विल हैव टू वर्क हार्ड विद ईच बैच, तब जाके रिजल्ट हो। यू अंडरस्टैंड दिस? सो ऐसा नहीं कि आई मस्ट जस्ट हैव अ हिस्ट्री ऑफ रिजल्ट्स, आई मस्ट आल्सो हैव करंट रिजल्ट्स, राइट? दूसरा, and we have that, right? And we are proud of it, that we are able to produce results every year consistently. The second thing, टीचर्स स्टेबल होना चाहिए। टीचर्स आपको पता होना चाहिए कि ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, राइट? एक साल में अगर 5 टीचर चेंज हो गए तो बच्चे का तो फ्रीक्वेंसी मैच होने में मुश्किल होगा, राइट? यू टेक अ फ्यू, एंड दैट टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगेन यू नो, अगर 5 टीचर चेंज होगा तो बच्चा उस सब्जेक्ट में there's no chance that he'll be able to or she'll be able to enjoy that subject, right? हर टीचर का एक तरीका होता है पढ़ाने का, तो उस सेम टीचर से अगर वो पूरा 2 साल पढ़ा होता है तब वो सब्जेक्ट को क्लियरली समझ में डाइजेस्ट कर पाता है, राइट? So it is very important that teacher student connect is very very important, right? Again मैं जो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि we make this structure very friendly, very approachable, very informal, ताकि जो भी बच्चे में डाउट्स है वो पूछ पाए। You know, I can be एकदम सूटेड बूटेड आके और एकदम पूरा मस्त इंग्लिश वगैरह में बोल के, you know, I can make a better impression perhaps, but students को काम नहीं है। You have to realize, you know, the expertise in the subject should not be mixed with English, right? English is just a mode of communication, right? तो कोई अगर बहुत मस्त एकदम, you know, लंबा चौड़ा अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, मतलब I can be talking in absolutely
speckless English and still be talking rubbish. और मैं एकदम हिंदी में भी बात कर सकता हूँ और एकदम मस्त बहुत informative और बहुत important points put across कर सकता हूँ, right? So do not confuse language with the content, right? So it is very important that we three have trust in each other. We three मतलब teachers, parents and students. We are a part of one team. Many students ये 11-12 वाला class 11-12 वाले एज में they start thinking कि मैं एक टीम में हूँ और पेरेंट्स और टीचर्स ऑपोजिट टीम में हमें एक दूसरे से लड़ना है. नहीं है सर, हम लोग सब एक टीम के पार्ट हैं, राइट? कंपटीशन है वो बाकी 15 लाख बच्चों से जो लोग वो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. So be very clear on this. We are on the same page. We are a part of the same team, and we will have to have mutual trust in each other. And ये clear रखना that in that team, the parents and the teachers are the support cast. You're the main cast. Okay, you're the lead. क्योंकि मेहनत तुमको करना है, एग्जाम में तुमको ही जाके बैठ के आना है, लिखना है. We will not be able to give the exam on your behalf. Okay, so जो मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, एग्जाम देना है, that is you will have to do. Okay, we are only whatever we do, the teachers and the parents will only be useful or will only be given output जब तुम लोग मेहनत करो and make it happen. Okay, otherwise whatever we do it won't तुम लोग ही नहीं पढ़ोगे तो we cannot do anything about it. See, neither the parents can do anything nor the teachers can do anything about it. See? So you have to understand that the responsibility and in all of this, देखो, where the only thing that we people are asking you to do is पढ़ाई, which is not such a bad thing considering उससे अच्छा ही होने वाला है कुछ. बहुत लकी हो तुम लोग को, ये प्रिविलेज है कि तुमको पढ़ने का मौका मिल रहा है. जिस दिन ये समझ में आ जाए ना कि दिस इज अ प्रिविलेज व्हिच यू हैव, देन यू विल नेवर अब्यूज इट. और इवेंचुअली 2 साल प्रेशर बहुत रहेगा, बट सबके ऊपर प्रेशर रहता है. ये अच्छी बात है ना. Let's learn how to work hard. Let's learn how to strive. Let's learn how to take pressures. लाइफ में बहुत कम है. ऐसा नहीं होने वाला लाइफ की हाँ पूरा रोजी रहेगा और लाइफ में प्रेशर्स आएंगे, उसको लेने की क्षमता डेवलप करनी है हमें. That's what training is all about. Don't be don't have this escapist mentality कि मेहनत से भागना है. मेहनत से भागने वाला जो टेंडेंसी है इज वेरी लो. मेहनत करेंगे एकदम पूरा हेड ऑन पोजीशन करेंगे, कोई मुश्किल आ रही है उसको एकदम पूरा सामने एकदम बेधड़क होके सामना करेंगे. That should be there, right? और बहुत ज्यादा ये YouTube पे लेक्चर और मोटिवेशनल स्पीच सुन के कुछ नहीं होना है. जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? मेहनत करो, बहुत ज्यादा प्लानिंग मत करो, पढ़ाई करो, राइट? दैट इज द मेन एजेंडा. डोंट जस्ट डिस्कस अबाउट स्टडीज, स्टडी. Yeah, any other questions? No? Okay, fine. So thanks a lot for joining in. Let's hope we'll be able to do the best with our students, right? With this batch especially. Thank you. Thank you. Before I let you go, wish you all the very very best for the next 2 years. I'll see you in the class, and the topic we begin with in chemistry, the topic we begin with will be mole concept. So atomic weight, molecular weight, Avogadro's hypothesis, Dalton's theory. 10th से ये भी 1-2 क्लास चलेगा, वो थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं. The first class will be Tuesday. Ritesh sir का chemistry का class से start. So see you in class. Absolutely. Bye-bye. Have a nice day. All the very best everybody.
कौन किसी का एक्सेप्ट है क्या आगे ये चीज इतना ये ले सकता है ना Stop करूँ क्या? नहीं Understand? क्या करें?